Dear students, welcome to Defense Services Academy Shahpur, Bhandara. In the last period we discussed about the measurement, and now today we start with the dimensions. That's an important topic. देखो बेटा ये कल ही बोला था मैं, it is important for all competitive exam one question asked from measurement of the dimension. अभी dimensions क्या होते हैं? Dimensions की definition कैसी बनती है? Okay, तो सबसे पहले definition. Dimension means power to which fundamental units must be raised to obtain a unit of given quantity. Okay. Last time अपन discuss किए थे, the quantities are divided into two types: fundamental quantity and derived quantity. First, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है? ये लास्ट में मैं डिस्कस किया। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. सो फर्स्ट वी फाइंड आउट व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी. फर्स्ट, मास. यूनिट जो होता है मास का किलोग्राम, किलोग्राम, एंड डायमेंशन इज गिवन बाय m as power 1, means powers given to fundamental quantity m1. Second, length. The SI unit of length is meter and dimension of length that is given by L1. Third physical quantity, fundamental quantity is time. The SI unit is second, dimension is given by E1. Fourth, fundamental quantity is temperature. Temperature का SI unit होता है Kelvin. So unit is given by K, Kelvin, and dimension is K1. Next fundamental quantity is electric current. Electric current, the unit is ampere, capital A, and to write the dimension, because electric current is given by symbol I, इसका dimension होगा I1. Luminous intensity, unit is candela and dimension is CD1. And last, amount of substance, unit is mole and dimension is given by mole power 1. So पहले ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन दिमाग में फिट करो. मास एज m1, लेंथ एज l1, टाइम एज t1, टेम्परेचर एज k1, इलेक्ट्रिक करंट I1, luminous intensity CD1, and amount of substance mole to the power 1. Is the power given to the fundamental quantities. इसके साथ 2 supplementary quantity और है, plane angle and solid angle. These are the 2 supplementary quantities, and the supplementary quantities have the unit. Plane angle have unit, last we discussed it. Plane angle have unit radian, solid angle have unit steradian. But both of these supplementary physical quantities have no dimension. These are the dimensionless quantity. Have unit but no dimension. Supplementary quantities, plane angle and solid angle have no dimensions. It is dimensionless. Okay. Then ये 7 और 2 supplementary quantities छोड़ के बची जितनी physical quantities है, all these are called as derived physical quantities. Okay. अभी derived physical quantities का dimension find out करते समय first we must know what is the dimension of the fundamental quantities. ये सभी fundamental quantities के dimension हमको को पता रहना चाहिए. दिमाग में फिट कर लो. मास m1, length l1, time t1, temperature k1, electric current I1, luminous intensity CD1, and amount of substance mole to the power 1. And dimension is always right in square bracket. Okay. Then how to find the dimensions of derived quantities? अभी बची जितनी quantities बहुत सारी है, but उसमें
कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशन ऐसे दिमाग में फिट कर लो सो दैट वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ऑल द क्वांटिटीज। ओके, तो सबसे पहले देखो डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी में स्पीड का फॉर्मूला। व्हाट इज स्पीड? आज की क्लास में आपको डेफिनेशन दी, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो हाउ टू फाइंड द डायमेंशन? डिस्टेंस किससे रिलेटेड बेटा? लेंथ से। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? L1। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? T1। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन पता हो तो ही डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशन आपको मिल सकते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का डायमेंशन मतलब लेंथ से रिलेटेड है L1, टाइम का डायमेंशन T1। अब करेक्ट करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पोजीशन चेंज होता है तो साइन उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर T1 न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन चेंज होगा, मतलब T -1 होगा, तो एक्चुअल डायमेंशन बनेगा ये L1 और 2 1 ऊपर गया तो साइन चेंज हो गया T-1। इस तरीके से स्पीड का डायमेंशन क्या बना होगा? L1 T-1। फिक्स कर लो दिमाग में, कुछ डायमेंशन बोल रहा हूं मैं। ओके, नाउ सेकंड वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी एक क्लास में आपको हो चुका है। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगेन डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू लेंथ। लेंथ का डायमेंशन फिर से L1 और टाइम का डायमेंशन है T1। इसका करेक्शन कर लेते हैं, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जाने बस ये T1 न्यूमरेटर में जाएगा, साइन चेंज होता है, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा? देखो L1 और ये T-1। इस तरीके से वेलोसिटी का जो डायमेंशन बना है L1 T-1। ओके, और अभी आधी रात को भी आपको पूछा गया तो ये ध्यान में रखना है कुछ डायमेंशन। मैं पूछू कभी वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? L1 T-1। स्पीड का डायमेंशन क्या है? L1 T-1। बोथ वेलोसिटी एंड स्पीड हैव सेम डायमेंशन L1 T-1। कैसे बना? ये फॉर्मूले से क्लियर हुआ, इसको फिक्स कर लो दिमाग में, ठीक है। देन अर्लियर क्लास में और एक डेफिनेशन मोशन में आपको हो चुकी है। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। ओके, अभी अपन ने इसके पहले टॉपिक में वेलोसिटी का डायमेंशन आपने फाइंड आउट कर लिया। व्हाट इज वेलोसिटी? ये डायमेंशन क्या डायमेंशन है? L1 T-1। लिख ले L1 T-1 और टाइम का डायमेंशन T1। अब इसका करेक्शन करते हैं तो T-1 ऊपर जाएगा तो T-2 बन जाएगा ये, तो फिर एक्चुअल डायमेंशन इसका बनेगा L1 T-2। So what is the dimension of acceleration? बेटा ध्यान में रखना, what is the dimension of acceleration? L1 T-2। ओके, और एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट है फोर्स। फोर्स ये भी आपको 9th क्लास में मोशन चैप्टर में हुए लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉ न्यूटन का, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका डायमेंशन ऑलरेडी आपको मालूम है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द मास? m1 again multiplied by acceleration। एक्सेलरेशन का डायमेंशन भी अपने को पता हो चुका है। व्हाट द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन? L1 T-2। अब इसको कलेक्ट कर ले तो डायमेंशन बनेगा बेटा L1 T-2। that is the dimension of force। okay, then force पे डिपेंडेंट है वर्क। व्हाट इज वर्क? ये सभी क्वांटिटीज आपको 8-9 स्टैंडर्ड में हो चुकी है। Now what is work? Work is a product of force into displacement, force and displacement। So now we know what is the dimension of force। force का डायमेंशन अपने को पता हो चुका है। What is the dimension of force? force का डायमेंशन है m1 L1 T-2 and force multiplied by displacement। displacement related to length, उसका डायमेंशन है L1। अभी इसको कलेक्ट कर लो, डायमेंशन क्या बनेगा बेटा? m1 L2
t minus 2. That's the dimension of what? डेफिनेशन से। अभी आपको डायमेंशन किस तरीके से याद रखना है उसकी मेथड बता दो। पहले कुछ बेसिक डायमेंशंस है वो अपने को याद रखना है। देन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला आपको हो चुका है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी। और जो बेसिक पार्ट में मास, ये फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन है m1, v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन है l1 t minus 1। ये डायमेंशन ऑलरेडी आपको पता हो चुके हैं। तो अभी काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या बनेगा वो ध्यान में रखना है। तो जो वैल्यूज होती है, डिजिट्स होती है, उसको डायमेंशन नहीं है, मतलब इसको डायमेंशन नहीं होता। जो भी वैल्यूज है उसको डायमेंशन नहीं है। बट व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास? मास का डायमेंशन है m1। Okay, fundamental quantity. What is the dimension of velocity? L1 t minus 1 but square to the power 2. इसको कलेक्ट कर लेते हैं। ये डायमेंशन बनेगा m1, ये होता है L2 और t minus 2. So that is the dimension of काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन कैसे बना? मास वेलोसिटी का स्क्वायर। मास का डायमेंशन m1, वेलोसिटी l1 t minus 1, इसको स्क्वायर करके लिखते हैं m1 l2 t minus 2। ओके, देन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला बहुत सारे हैं, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको 8th स्टैंडर्ड में हुआ है। फॉर्मूला है mgh। ओके, m मींस मास, मास का डायमेंशन क्या बना बेटा? मास का डायमेंशन होता है m1। g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और कोई भी एक्सेलरेशन ले लो, एक्सेलरेशन का डायमेंशन ऑलरेडी अपने को पता है क्या है? l1 t minus 2, l1 t minus 2। ओके, एंड h फॉर हाइट, हाइट इज रिलेटेड टू लेंथ, लेंथ का डायमेंशन हुआ है l1। अब इसको कलेक्ट कर देते हैं, m1 ये l1 l1 l2 हो जाएगा, तो m1 l2 और बचा t minus 2। दैट्स द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी पोटेंशियल एनर्जी लो, अपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट किए थे, तो उसके फॉर्मूले से ये उसका डायमेंशन। इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th का चैप्टर आपको हुआ, करंट की डेफिनेशन हुई, करंट इज द चार्ज अपॉन टाइम। सो चार्ज इक्वल्स, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस सर्विसेज एकेडमी शाहपुर मंडला। देखो, इन द लास्ट पीरियड वी डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट। नाउ टुडे वी स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डायमेंशन। देखो, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायमेंशनल एनालिसिस से पूछा जाता है, मतलब डायमेंशन पे पूछा जाता है। सो रिमेंबर, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेथड बहुत आसान है, बट किस तरीके से उसको कैप्चर करना है ध्यान में रखना है, ठीक है? ओके, तो फर्स्ट डायमेंशन से क्या होता है? डायमेंशन मींस द पावर्स गिवन टू द फंडामेंटल यूनिट टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ओके, तो अभी लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस किए हैं हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो डायमेंशंस है पहले उसको देख लेते हैं। तो पहले मास, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ओके, बट डायमेंशन ऑफ द मास इज गिवन बाय m1। Dimension always written in square bracket. Okay, so dimension of the mass is m1. Length, उसका ऐसा यूनिट जो होता है, लास्ट पीरियड में अपन ने जो डिस्कस किए, उसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है मीटर। ओके, और डायमेंशन ऑफ द लेंथ दैट इज n1। ओके, देन टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट होता है बेटा सेकंड, सेकंड, और उसका जो डायमेंशन बनेगा दैट इज t1।
देन द नेक्स्ट क्वांटिटी चार्ज, चौथी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट जो होता है एम्पियर, गिवन बाय सिंबल ए, एंड उसका जो डायमेंशन है दैट इज गिवन बाय I1. ओके, देन पांचवी क्वांटिटी टेम्परेचर के अलग अलग यूनिट्स है, सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, बट टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज केल्विन is given by K and its dimension is K1. The next, luminous intensity of the light, luminous intensity का ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, given by CD, और उसका डायमेंशन होता है CD1. Okay, and the last सातवीं क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका ऐसा यूनिट होता है मोल और डायमेंशन होगा मोल टू पावर 1. ओके, तो दिमाग में एक चीज फिक्स कर लो, पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो डायमेंशंस है वो फिक्स करोगे तो ही आपको डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन बताओगे. बहुत आसान बात है. देखो, व्हाट द डायमेंशन ऑफ मास m1, लेंथ l1, टाइम t1, इलेक्ट्रिक करंट i1, टेम्परेचर k1, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी cd1 एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस mol1. ये सब डायमेंशन एकदम दिमाग में एकदम फिक्स्ड कर लो कि ताकि यही पता हो तो आगे डिराइव्ड जितनी क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, उन सभी के डायमेंशन फाइंड आउट होते हैं इसी से. तो फिर से एक बार, मास m1, लेंथ l1, टाइम t1, इलेक्ट्रिक करंट i1, टेम्परेचर k1, luminous intensity cd1 and amount of substance mol1. And there are two supplementary quantities जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए. There are two supplementary quantities, plane angle and solid angle. Both these have units. Plane angle have unit radian. Solid angle have unit steradian. तो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. But supplementary quantity have no unit. Is it clear? Now, अभी ये 7 और 2 सप्लीमेंट्री, ये फंडामेंटल क्वांटिटी छोड़ के बची जितनी क्वांटिटीज है उसको अपन बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अपने के फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन पता होना जरूरी होता है. ओके, नाउ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, पहली चीज स्पीड, जो आपने 8वीं क्लास में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. स्पीड क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड. अब देखो, डिस्टेंस किससे रिलेटेड है? लेंथ से. और लेंथ का डायमेंशन क्या है? यहां से देखो, लेंथ का डायमेंशन क्या है? l1. और टाइम का डायमेंशन क्या है बेटा? t1. और इसको भी कनेक्शन करना है. जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है तो साइन चेंज हो जाता है. यार ये t1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. तो इसका डायमेंशन जो बनेगा वो होगा l1 t-1. t1 था, ऊपर गया t-1. तो व्हाट द डायमेंशन ऑफ द स्पीड? l1 t-1. ओके, नाउ देन वेलोसिटी. ये भी डेफिनेशन आपको 8वीं क्लास में मोशन चैप्टर में हो चुकी है. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फॉर्मूला बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू द लेंथ. अगेन लेंथ का डायमेंशन l1, टाइम का डायमेंशन t1. इसको कलेक्ट करते हैं, ये ऊपर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. इसका जो डायमेंशन बनेगा l1 t-1. Thus the dimension of velocity l1 t-1. और अभी ये 7 डायमेंशन होने के बाद
डिराइव्ड क्वांटिटी में वेलोसिटी और स्पीड के जो डायमेंशंस होते हो वो दिमाग में अच्छे से फिट करोगे, क्योंकि इस डायमेंशन आपको पता होने के बाद बाकी कितनी भी क्वांटिटीज आए वो अपन आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अब मेथड बताऊंगा मैं आपको। तो व्हाट द डायमेंशन ऑफ स्पीड? L1 t minus 1. What is the dimension of velocity? L1 t minus 1. तो ये दोनों स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों के डायमेंशन सेम है। L1 t minus 1 फिक्स्ड हो गया दिमाग में। ओके, देन एक्सेलरेशन क्या होता है? ये भी डेफिनेशन आपको 8th स्टैंडर्ड में मोशन में हो चुकी है। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फॉर्मूला लिखना है तो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अभी अपने को पता ही हो चुका है कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है बेटा? वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1 t minus 1 और टाइम का डायमेंशन क्या बन रहा है? t minus 1। अब इसको करेक्शन करना है, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा -1 t minus 1 और ये -1, मतलब करेक्शन करते हैं तो ये जो डायमेंशन बनेगा ये होगा L1 t minus 2। दैट्स द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर कि डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन इज L1 t minus 2। ओके, देन थर्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी फोर्स। 9th स्टैंडर्ड में आपको मोशन चैप्टर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हुआ, उसमें न्यूटन्स का सेकंड लॉ जो है उस समय फोर्स का फॉर्मूला आपको हुआ है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो। नाउ मास का डायमेंशन, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास का डायमेंशन क्या है? मास का डायमेंशन है m1। अब अपने को एक्सेलरेशन का डायमेंशन मिल चुका है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन बन रहा है L1 t minus 2। इस तरीके से इसका करेक्शन करते हैं तो ये डायमेंशन बनेगा m1 L1 t minus 2 and that's the dimension of force। ये भी दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक है। Then work is a product of force and displacement। अभी अपने को फोर्स का डायमेंशन मिल चुका है m1 L1 t minus 2 and displacement related to the length। तो अब इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है। फोर्स का डायमेंशन अपने पास है m1 L1 t minus 2 and displacement related to the length। लेंथ का डायमेंशन है L1, इसको करेक्ट कर लो, L1 L1 L2 हो जाएगा, तो m1 L2 t minus 2। That's the dimension of work। Work is a product of force and displacement। फोर्स का डायमेंशन लिखे जो पहले कैलकुलेट किए थे, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लिखे और इसको करेक्शन करते हैं तो we get the dimension m1 L2 t minus 2। Now kinetic energy, the energy possessed by the body, energy acquired by the body due to its motion, that is called kinetic energy। और kinetic energy का फॉर्मूला तो मालूम है आपको, 8th स्टैंडर्ड में हो चुका है। kinetic energy half v square। जब कांस्टेंट बनता है 1/2 और डिजिट्स कांस्टेंट, उसको कोई डायमेंशन नहीं होता। बट व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास? पता है तो मास का डायमेंशन, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है। डायमेंशन क्या मास का? मास का डायमेंशन है m1। वेलोसिटी v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन पता है अपने को क्या है? L1 t minus 1 बट उसका स्क्वायर है 2। ओके, तो इसका करेक्शन करते हैं, इसका डायमेंशन क्या बनेगा? देखो m1 L2 t minus 2। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन बनेगा m1 L2 t minus 2। ओके, देन we discuss about the potential energy। Potential energy, energy acquired by the body due to its position in the field। अभी वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, जो भी फील्ड से बॉडी को एनर्जी, फील्ड से मिलने वाली एनर्जी और उसके कॉन्फ़िगरेशन, उसके पोजीशन से मिलने वाली उसको एनर्जी जो होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें
इस स्टैंडर्ड की बात करते हैं। द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड से जो पोटेंशियल एनर्जी बनती है उसका फॉर्मूला होता है mgh। नाउ m इज मास, मास का डायमेंशन बनता है m1। ओके, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब कोई भी एक्सेलरेशन ले लो, उसका डायमेंशन बनेगा फिर L1 t minus 2. That's the dimension of acceleration. Okay, and H for height, and height is related to length. Length का dimension होगा L1। अभी करेक्शन कर लेते हैं बेटा इसका। चलो इसका करेक्शन करते हैं। तो यहाँ m की एक ही वैल्यू है, that is m1, L2, okay, m1, L2 and t minus 2। तो ये डायमेंशन बना पोटेंशियल एनर्जी का। फिक्स कर दो वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कोई भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से हो, मैग्नेटिक फील्ड से हो, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, उन सभी का डायमेंशन सेम हो गया। मतलब ये सभी इसमें डायमेंशन, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हैव द डायमेंशन m1, L2, t minus 2। देखो ठीक है। Then we discuss about electric charge. In 10th standard, you studied about the current electricity. Current electricity, current is the charge upon time. So electric charge का फॉर्मूला होगा Q, current into time. Now चार्ज का डायमेंशन फाइंड आउट करना है अपने को। तो करंट का डायमेंशन, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन होता है I1 और टाइम का डायमेंशन होता है T1। कनेक्ट कर लो, इसका डायमेंशन होगा I1 T1। Then remember electric intensity। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लास्ट पीरियड में अपन डिस्कस किए हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में electric intensity the electrostatic force experienced by unit positive charge at a point। means electric intensity का फॉर्मूला बन रहा है E equals to force divided by charge। electric intensity is defined as electrostatic force experienced by unit positive charge। means electric intensity मतलब force divided by charge। now force का डायमेंशन हम लोग पहले पता चल चुका है। force का डायमेंशन क्या बन रहा है देख लो अभी। यहाँ force का डायमेंशन बन रहा है M1, L1। हाँ 10 बेटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो डायमेंशन बन रहा है, फोर्स का डायमेंशन बन रहा है M1, L1 t minus 2 और चार्ज जो अपने यहाँ पे देखा है I1 T1। कलेक्शन करो, बस कलेक्शन करो। M1, L1 t ऊपर गया t minus 3 और ये I minus 1। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायमेंशन बना M1, L1 t minus 3 I minus 1। अब आया अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस EMF जिसका यूनिट होता है वोल्ट और वोल्ट V वाट डिवाइडेड बाय चार्ज। फॉर्मूला वाट डिवाइडेड बाय चार्ज। वाट का डायमेंशन में क्या है? वाट का डायमेंशन अपने को पता हो चुका है। यहाँ वाट का डायमेंशन है M1 L2 t minus 2। डायमेंशन की वैल्यू पुट कर दो M1 L2 t minus 2 डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज का डायमेंशन यहां पता हुआ अपने को, दैट इज I1 T1। अब करेक्शन कर दे इसको, सिंपल। ये करेक्शन करेंगे, दैट इज M1 L2 ये t minus 1 ऊपर होगा तो t minus 3 और ये ऊपर जाएगा I minus 1। इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज इसका डायमेंशन बन रहा है M1 L2 t minus 3 I minus 1। अभी इतने डायमेंशन अपने दिमाग में फिट हो गए बेटा, तो बाकी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है कोई भी डायमेंशन आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट ये डायमेंशन आपके पास रहना चाहिए। चलो ध्यान रखो एक बार फिर से कि what the dimension of fundamental quantity mass m1, length l1, time t1, electric current I1, temperature k1, luminous intensity c1, amount of substance mol1 और supplementary quantity को कोई यूनिट
है तो बट डायमेंशन नहीं है। ओके, और डिराइव्ड क्वांटिटीज में ये सारी नहीं, ये छोड़ के सभी क्वांटिटी से 7 क्वांटिटी छोड़ के जितनी क्वांटिटी है सभी डिराइव्ड है, बट डिराइव्ड क्वांटिटीज में ये 7 क्वांटिटीज का डायमेंशन आपको पता रहेगा तो बाकी डायमेंशन आसानी से कैलकुलेट होगा। ध्यान में रखना है स्पीड वेलोसिटी m1 नहीं है, तो स्पीड और वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है ये l1t-1, एक्सीलरेशन का डायमेंशन है ये l1t-2, फोर्स का डायमेंशन है m1 l1t-2, व्हाट और कोई भी एनर्जी ले, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी m1 l2t-2, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन I1 t1, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायमेंशन m1 l1t-3 I-1, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन m1 l2t-3 I-1। इतना अच्छे से आपके फिट हो गया तो बाकी डायमेंशन आसानी से कैलकुलेट होगा। किस तरीके से होते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स में अपन कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से डिराइव्ड क्वांटिटीज के 7 डायमेंशन हमने को पता होने के बाद कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो जस्ट वी मस्ट रिमेंबर द फार्मूला। व्हाट द फार्मूला? बस वैल्यू पुट अप करो, 7 डायमेंशन जो आपके पास है बस उसकी वैल्यू पुट अप करना, आप कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान पार्ट है। देखो अभी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अपन। प्रेशर फार्मूला होना चाहिए, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। चलो फोर्स का डायमेंशन आप लोगों को पहले ही पता चल, तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2 और एरिया यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो डायमेंशन होना l2। बस कलेक्शन वाला पार्ट है, ये कलेक्ट कर दो तो डायमेंशन क्या बनेगा देख लो अभी इसको। डायमेंशन बनेगा m1 l-1 क्योंकि l2 ऊपर गया, l-1 t-2, ये हो गया डायमेंशन किसका? प्रेशर का। मतलब कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने इसके पहले जो बताया वो 7 डायमेंशन आपके दिमाग में है। बस आगे वाली क्वांटिटीज के लिए ये आपके पास फार्मूला है, हर चैप्टर में नए नए फार्मूले आएंगे। स्टार्ट फ्रॉम दिस कि अप टू लास्ट चैप्टर टू द 12 आपको नए नए फार्मूले मिलेंगे और जैसा फार्मूला मिल गया बस पहले पुट अप करना है, कैलकुलेट करना है। Not necessary कि we have to fix all the values। पहले मैं बोला जो 7 क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल उसके डायमेंशन याद रखना है और 7 जो मैं अभी डिराइव्ड क्वांटिटीज की बताया वो याद रखेंगे आप, तो बाकी इसी फॉर्मूले से बनने वाले बाकी डायमेंशंस होते हैं। देखो अभी हम लोग जैसे पावर इज अ वर्क अपॉन टाइम, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क दैट इज कॉल्ड पावर। अब देखो वर्क का डायमेंशन मालूम था आपने को, क्या डायमेंशन था वर्क का? m1 l2 t-2 और टाइम t1। बस आई बात कलेक्शन की और करेक्ट कर लेंगे। यहां है m1 l l2 और t-1 ऊपर हो जाएगा तो t-3। इस तरीके से वर्क का डायमेंशन क्या बना? m1 l2 t-3। कोई भी डायमेंशन कैलकुलेट करना है बस अपने को भी फॉर्मूला पता रहना चाहिए। देखो अभी और एक मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ओके, तो मास का डायमेंशन क्या बना बेटा? m1, ओके, और वेलोसिटी पता है अपने को l1 t-1। प्रेडिक्शन कर लो, डायमेंशन बनेगा m1 l1 t-1, that's the dimension of momentum, okay। then impulse बोल दिया, impulse यानी क्या? it is a product of force and time, product of force and time। चलो force का डायमेंशन क्या है? force का डायमेंशन है m1 l1 t-2 and time का डायमेंशन t1। करेक्शन करते तो डायमेंशन बनेगा m1 l1 t-1। मतलब कोई भी डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए अब सिर्फ अपने को क्या मालूम होना चाहिए? इसके फॉर्मूलेस क्या है, बस उसमें उसके डायमेंशन पुट अप करना है, करेक्ट करना है, वैल्यू मिल जाएगी। देखो रेजिस्टेंस 10 स्टैंडर्ड में आपको हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। रेजिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशन है
वो आपको याद रखने के लिए बोला है। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन है m1 L2 T-3 I-1। ओके, और करंट का डायमेंशन है I1 अगेन। अब इसका करेक्शन कर ले तो यू गेट द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन बनेगा m1 L2 T-3 I-2। सिंपल है, कोई भी डायमेंशन अपने को फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू जस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी, पुट अप द डायमेंशंस एंड कलेक्ट इट, यू गेट द डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। अब इधर ही नहीं है, 12 ही नहीं है, अब हर चैप्टर में नई नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होते जाएगी और हर क्वांटिटी में इसी तरीके से ही मेथड यूज करना है, वो उनके डायमेंशंस पुट अप करना है, कलेक्ट करना है।